Hello student, today we will discuss about reflection of light. Reflection of light means a ray of light falls on any surface and it goes back in the same medium. This is called reflection of light. In earlier classes, I think in class 7th or 8th, we have studied about reflection of light. So, for reflection of light, we need a reflecting surface. Suppose this is a reflecting surface and it is polished this side. A ray of light is coming from somewhere and striking to this surface. This is called incident ray. And after striking this surface, this ray goes back in the same medium. This is called reflected ray. A line which is perpendicular to this plane, we draw this line and this is called normal. Here the angle between incident ray and normal is called angle of incident, and the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. Both these two angles are always equal. We have studied in earlier classes law of reflection, that incident ray, normal and reflected ray lies on the same plane, and the second law is angle of incident is equal to angle of reflection. In class 10, we studied about spherical surfaces. We have two types of spherical surfaces, concave and convex. Concave mirror, I will talk about concave mirror. Concave mirror means a curved surface which is polished outer side, or we can say the reflecting surface is inward. Then this type of mirror is called concave mirror. And if the reflecting surface is curved outward, here this is polished surface. So this is called convex mirror and this is called concave mirror. I will talk about some basic terms which we have studied in our previous classes. The center point of this mirror is called pole. This is pole and it is represented by P. This point is called C. C means center of curvature. Center of curvature means this spherical surface or spherical mirror is a part of a large sphere. Naturally, this large sphere has a center, and that very center is called the center of curvature. It is represented by C. The line joining C and P, this is called principal axis. Principal axis. Here we have another term, it is called focus. Now I will discuss about focus. In previous classes we have studied that when the ray of light are coming parallel to principal axis, then after reflection the ray pass through a point. And if another ray is also coming from parallel to principal axis, then after reflection it will also pass through the same point. If we take any other ray and which is coming parallel to principal axis, after reflection it will go from the same point. So all the rays which are coming parallel to principal axis meet at same point after reflection. This point is called focus. हम लोगों ने ये कॉन्वेक्स लेंस के साथ देखा हुआ है, किसी क्लास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने
कई बार एग्जाम्पल करके देखे हैं कि जब हम धूप में एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसको रखते हैं और नीचे कोई कागज़ या कचरे को रख देते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उस कागज़ या कचरे में आग लग जाती है, धुआं निकलने लगता है। वो धुआं क्यों निकला? क्योंकि सारी की सारी जो रेज हैं वो आ रही हैं और उनको उस लेंस ने किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, वही पॉइंट फोकस कहलाता है। तो यही यहाँ पर भी सारी रेज जो है किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। अब मैं यहाँ पर कुछ और टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। पहला टर्म है C और P, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और टर्म है F और P के बीच की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। And this is called focal length. This is radius of curvature and focal length. We have studied about these terms in class 10. Now, there is a relation between F and R. Relation between F and R. And R is equal to twice of F, or F is equal to R by 2. Means focal length is always half of the radius of curvature. This is the relation. We can derive this relation, but in class 12th we don't need to derive this relation. Now I will discuss about the rules for image formation. Rules for image formation. Rules for image formation. Rules for image formation, I will take example of concave mirror, because in convex mirror all the images are virtual. So there are not so many cases in convex mirror, but in concave mirror we have different cases. Suppose this is a concave mirror and this point is pole, this is C, this is F, and this is principal axis. Okay. Now, if the object is placed at infinity, means object is placed somewhere here, means at infinity. Then the rays coming parallel to principal axis will meet at this point. Means the image will be formed at focus. So now I will draw a table. Object and image. If object is at infinity, the image will be at focus. दूसरा केस लेते हैं हम, यदि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है. सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ए एंड बी. AB is an object. A ray is coming parallel to principal axis. It will pass through focus. Another ray which is going through C. जो भी C से रे जाएगी वो टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस चलेगी. तो इसका मतलब
the image of this point we will get here. Similarly, if a ray is coming from this point, then its image will be formed here, and the image of this point will be formed here. Means the image of the object AB will be A dash and B dash. It is an inverted image. तो यहाँ पर क्या आया कि यदि ऑब्जेक्ट C और इन्फिनिटी के बीच में है तो उसकी इमेज C और F के बीच में बनी है। ये सेकंड केस, ये हम सब लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि यदि ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है तो इमेज बनेगी बिटवीन C एंड F। इसी तरीके से यदि हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट C पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी C पर ही पास होगी। ये सब क्लास 10th में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि एट C तो इमेज भी एट C होगी। अब यहाँ पर पहले इमेज का साइज छोटा था, अब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, बट जब C पर आएंगी तो उसका इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। इसी तरीके से यदि हम C और F के बीच में रखेंगे, ये C है, दिस इज F है, C और F है, तो ऑब्जेक्ट को हम यदि C और F के बीच में रखेंगे तो एक रे पैरेलल जाके फोकस से पास होगी, दूसरी सपोज फोकस से जा रही है तो ये टकराने के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी और इमेज इसकी यहाँ पर होगी। तो ये इमेज बनी है हमारी बियॉन्ड C। फोर्थ केस की बिटवीन C एंड F, तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड C। इसी तरीके से यदि हम फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी, और यदि फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो हम लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़े। अब मैं कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। साइन कन्वेंशन ये है कि सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो पोल के लेफ्ट में है वो सारी की सारी नेगेटिव ली जाती हैं, और जो पोल के राइट साइड में है वो सारी की सारी पॉजिटिव ली जाती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी पॉजिटिव होंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की सारी क्वांटिटीज नेगेटिव होंगी। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ पॉजिटिव है बट इमेज की लेंथ नेगेटिव है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है और इमेज भी लेफ्ट साइड में है। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है कि हमको लेफ्ट की सारी क्वांटिटीज नेगेटिव लेना है और पोल से राइट साइड की सारी क्वांटिटीज हमको पॉजिटिव लेना है। दूसरी बात, सारी की सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल से ही मेजर की जाती है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये पोल से ही मेजर करेंगे। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल, ये सारी क्वांटिटीज हमको पोल से ही मेजर करना है। तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है इसको हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इट इज डिनोटेड बाय u, and the distance of the image is called v, and this is called focal length. So in this case all the terms are on the left side. लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ये सारी की सारी क्वांटिटीज नेगेटिव होंगी। लेकिन यदि हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में चूंकि सेंटर राइट साइड में है, फोकस भी राइट साइड में है, तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगी। इस तरीके से हमको थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में ध्यान रखना है।
अब साइन कन्वेंशन के बाद मैं आता हूं मिरर फार्मूला पर। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला एक, ये जो तीन टर्म है यू वी एंड एफ, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को ही हम कहते हैं मिरर फार्मूला। तो मैं एक इसी डायग्राम को कंटिन्यू करते हुए मिरर फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करता हूं। ये एक कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सी, this is F. Suppose an object is placed here, AB. A ray of light coming parallel to principal axis and it passes through the focus. A ray of light is coming through C and it goes back in the same path. So the image of this object will be formed here. So we name it A dash and B dash. A dash B dash is image of object A. Now the mirror formula can be obtained by using simple logic of similar triangles, which we have studied in class 10. Okay. अब मैं यहाँ पर ये पहले ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC और दूसरा A डैश B डैश C। इन दोनों ट्राइंगल के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C, यहाँ पर आप देखिए कि ये एंगल 90 है, राइट एंगल है, यहाँ पर भी ये एंगल राइट एंगल है, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स बराबर होंगे, वर्टिकली एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इन दोनों ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स आर इक्वल। जब किसी भी ट्राइंगल में दो ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो इट मींस वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C आर सिमिलर सिंपली बाय एक क्राइटेरियन। ये आप लोगों ने 10th क्लास में सिमिलरिटी चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो एक क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। जब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनेट होती हैं। प्रोपोर्शनेट मतलब उनमें एक निश्चित प्रोपोर्शन रहेगा। निश्चित प्रोपोर्शन रहेगा। अब मैं यही बात करता हूँ कि यहाँ पर इस ट्राइंगल की साइड AB और इस ट्राइंगल की साइड A डैश B डैश, ये किसकी प्रोपोर्शन में होगी BC और दूसरा B डैश C। दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम एक और, हमें दो और ट्राइंगल चाहिए। इसके लिए हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं कि सपोज एक कोई रे जो है इसको P से ज्वाइन किया और इसको भी P से ज्वाइन किया, मतलब ये रे यहाँ से P पर जा रही है तो P पर जाएगी तो उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ABP। नाउ इन ट्राइंगल ABP, triangle ABP and triangle A dash B dash P। अब आप यहां पर फिर देखिए ABP and A dash B dash P, ये यहां पर 90 है, यहां पर ये 90 है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन दो ट्राइंगल सेम हो गए, दोनों ट्राइंगल सेम हो गए तो मींस ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हो गए सिमिलर।
देता हूँ कि बाय ए क्राइटेरियन। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में हो, मींस ए बी, यदि हम इसकी बात करें ए बी, तो इस ट्राइंगल की साइड होगी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी। अब ये साइड, क्योंकि हम हाइपोटेन्यूज इसमें कोई मतलब नहीं है, तो पी बी डिवाइडेड बाय पी बी डैश, पी बी डिवाइडेड बाय पी बी डैश। We name this equation as second equation. If we compare first and second, so I will write here from first and second, this is equal to this and this is equal to this. Therefore, CB divided by B dash C is equal to PB divided by PB dash. अब मैं यहाँ पर कुछ जो बेसिक टर्म्स अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे उनको अगेन इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड यू, मींस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल और फ्रॉम द मिरर। दिस इज कॉल्ड वी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, एंड दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब देखिए CV, हमको CV की वैल्यू नहीं पता, इसको हम थोड़ा कुछ रीराइट करेंगे, कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। CV को वी कैन राइट PB माइनस PC, PB माइनस PC एंड B डैश C की भी वैल्यू पता नहीं है, बट हम इसको लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू PB की वैल्यू पता है, उसको ऐसे रहने दीजिए, PB डिवाइडेड बाय PB डैश। अब यहाँ पर हम इन सारे टर्म्स की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे। PB, you can see in this figure, PB is U and PC is R, radius of curvature. PB dash is V and PF is small f। दूसरी बात साइन कन्वेंशन की आ रही है, सारी की सारी क्वांटिटीज लेफ्ट में है तो हम इन सबको नेगेटिव यूज करेंगे। तो PB मीन्स माइनस U माइनस PC इज माइनस R, PC माइनस R माइनस PB डैश माइनस V is equal to PB minus U and this is minus V. Now minus U plus R divided by minus R plus V is equal to U divided by V. We know that R is equal to 2F. R is equal to 2F means minus U plus 2F divided by minus 2F plus V is equal to U upon V. Now cross multiply, minus UV plus 2VF is equal to minus 2UF plus UV. 2VF plus 2UF is equal to UV plus UV, ट्रांसपोज कर दिया हम लोगों ने। 2VF plus 2UF is equal to 2UV। 2 तो सब में से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस सारे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय UVF। यदि सारे के सारे इक्वेशन को हम UVF से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमको बचेगा 1 अपॉन U, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन F। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। I derived this formula taking the concave mirror and a real image, but you can do the same derivation in convex mirror. You will have to apply the concept of similar triangle.
एंड एक बात और मैं ये बताना चाहूँगा कि 12th क्लास में ये जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मिरर फार्मूला बहुत ही रेयरली कभी डेराइव करने के लिए पूछा होगा। हाँ, इसका रिजल्ट जरूर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ये रिजल्ट को जरूर अपने दिमाग में रखें। ये हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के काम में आएगा। तो ये हमारा है यूबीएफ। अब मैं एक और टर्म यहीं इंट्रोड्यूस करूँगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूँगा। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा या कितना छोटा कर दिया है, इसी टर्म को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन एम जो है, एम हम कहते हैं साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि ये इस ऑब्जेक्ट की साइज h है और इसकी साइज यदि h डैश है, तो m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h, h डैश डिवाइडेड बाय h। ये होगा हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं h डैश और h को हम u और v के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो m और m इज इक्वल टू होगा माइनस v अपॉन u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक आया है। इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला के और भी कई फॉर्म हो सकते हैं। चलिए मैं उनके बारे में और बता देता हूँ आपको, इसको रब कर देता हूँ। इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करके हम और भी कई फॉर्मूले बना सकते हैं कि 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। यदि हम इस पूरे इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करते हैं तो v अपॉन u प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, और 1 माइनस 1 अपॉन f इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। सॉरी, यहाँ पर v आएगा minus b upon u, we can write m. m is equal to f minus b upon f। एक ये फार्मूला है। इसी तरीके से यदि हम पूरे इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 1 प्लस u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन f, और u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन f माइनस 1, और u माइनस f अपॉन f इज इक्वल टू u अपॉन v। और इसको यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस u अपॉन v इज इक्वल टू f माइनस u अपॉन f, एंड दिस इज m। m इज इक्वल टू f माइनस u अपॉन f। ये दूसरा फॉर्म आ गया मैग्निफिकेशन का, जिसमें हम f और u की हेल्प से मैग्निफिकेशन फॉर्म पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम f और v के फॉर्मूले से पता कर सकते हैं ये सब। अब मैं कुछ एक और टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसकी इमेज किस तरीके से मूव करेगी, वो एक फॉर्मूला और मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसके लिए भी हमको इन्हीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। From mirror formula, ये तब है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, और मूव कर रहा होगा तो नेचुरली उसकी इमेज भी उसी तरीके से मूव करेगी। तो उनके बीच में क्या रिलेशन आता है, 1 बाई u प्लस 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई f। इनको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें with respect to टाइम तो
क्या होगा, इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/u² एंड du/d। ये आएगा -1/v² एंड dv/dt इज इक्वल टू 0 क्योंकि f इज कांस्टेंट। जब f कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन द रेट ऑफ चेंज विद टाइम इज 0, तो कभी चेंज होगा ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। इसको यदि हम किसी और टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको कुछ और टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये द चेंज, इस इक्वेशन को हम किसी और तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि UO या VO, this is the velocity of object and this is velocity of the image, -1/v² and -1/u² is equal to 0। तो अब आप देखें कि v of I -1/v² is equal to 1/u² and v of object। और थोड़ा सा सॉल्व करें, vi is equal to -v²/u² एंड vo। तो यदि हमको u और v की वैल्यू पता है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v/u is square and v of object means the velocity of image and this is velocity of the object। So using this formula we can find the position of image of a moving object। Again this can be replaced by any other formula। So vi is equal to minus of u minus f divided by f its whole square and the So this formula will be very useful for finding the velocity of the image if we know the initial position of object and the focal length। Now numerical based on these formula। न्यूमेरिकल फार्मूलाज, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा साइन कन्वेंशन दिमाग में रखें कि पहली बात ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही होगा, इसका मतलब u इज ऑलवेज नेगेटिव। दूसरी बात, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी क्योंकि फोकस उसका लेफ्ट में है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा राइट में होगी तो उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो यदि हम ये दो चीज़ दिमाग में रखें तो साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं आएगी। जब हमारे साइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ही। पहले क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं 10th में सिंपल प्रॉब्लम्स, दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 centimeter in front of a concave mirror, find the position, nature and signs of the image if focal length of the concave mirror is 10 centimeter। Suppose this is an example, मैं लिख देता हूँ कि an object of size 5 centimeter is placed 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter।
find position, nature and size of image। ये कोई अच्छा नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि ये किस मिरर के बारे में बात है। ये है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है मीन्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस इज एक्स, ये हमको गिवन है। जो टर्म्स गिवन है पहले देख लेते हैं हम। x is equal to 5 centimeter. An object is placed 25 centimeter means u is 25 centimeter, but it is negative because u is always negative. Object is always placed on the left side. Second, f is 10 centimeter and for concave mirror it is also negative. Now we have to find v, h dash. So we can apply the mirror formula. From mirror formula, 1 by u plus 1 by v is equal to 1. Now substitute all these values in the equation. Minus 25 plus 1 upon v is equal to minus 1 by 10, or 1 by v is equal to minus 1 by 10 plus 1 by 25, or simply taking LCM 25 50 means minus 5 plus 2 or minus 3 by 50, or v is equal to minus 50 by 3 centimeter means minus 16.6 centimeter. This is the position of the object. If we apply m is equal to minus v upon u, so we can find magnification. And since the image is on the left side, it will be real. And again, the image is, we can see here that object is placed 25 centimeter and image is formed at 16.6 centimeter. So this will be smaller than the object. क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब C पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज C पर ही बनती है और उसके बराबर बनती है। अब ये यदि ये C और P के बीच में बन रही है तो उसके बीच में छोटी होगी, और बाकी आप साइज ऑफ द इमेज भी पता कर सकते हैं। 5 से छोटी आएगी, m की वैल्यू आ जाएगी तो हम साइज भी पता कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब आप लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आई होप समझ में आया होगा ये सब चीज़ें। कुछ आगे के टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।